मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। સ્વામી શ્રી પ્રેમપુરી મહારાજના ચરણોમાં વંદન. આજથી 3 દિવસ સુધી મંચ પર બિરાજમાન મહામંડલેશ્વર પરમ પૂજ્ય સ્વામી શ્રી વિશ્વેશ્વરાનંદગીરી મહારાજના ચરણોમાં વંદન. આપ સૌ શ્રોતાઓને વંદન. કચ્છનો ભૂકંપ હોય કે તમિલનાડુની સુનામી, પ્રેમપુરી સમાજમાં હંમેશ આગવું સ્થાન ધરાવી અને સમાજની સેવા કરે છે. આજ જ્યારે વિશ્વ કટોકટીનો સામનો કરી રહ્યો છે ત્યારે જ્ઞાનથી મન કેમ મજબૂત થાય, જ્ઞાનથી કેમ પ્રસન્નતા કેળવાય, અને પરમ પૂજ્ય સ્વામી શ્રી વિશ્વેશ્વરાનંદ મહારાજજી જ્યારે જ્ઞાન, કર્મ અને ઉપાસના એ 3 દિવસ સુધી આપણને જ્ઞાનની ગંગા આપશે તો એનાથી વધારે સદભાગ્ય આપણા શું હોઈ શકે. સુપ્રસિદ્ધ ગાયક શ્રી અયોધ્યાદાસ દ્વારા મંગલાચરણ થઈ રહ્યું છે. શ્રી કુંદનભાઈ મિશ્રા તેમજ શ્રીમતી સોનલબેન દ્વારા ભજન દ્વારા રસ પૂરાશે. અને આપણે બહુ જ સદભાગી છીએ કે હિન્દુસ્તાનમાં અને વિદેશોમાં ધર્મની પતાકા અને હિન્દુ ધર્મની પતાકા સર્વ ઠેકાણે ફેલાવનાર દેશ અને વિદેશ, કેનેડા, અમેરિકા, ઇંગ્લેન્ડ અને ભારત વર્ષમાં તો જેમના 15 આશ્રમો છે એવા શ્રી વિશ્વેશ્વરાનંદજી મહારાજ જ્ઞાન, કર્મ અને ઉપાસના એમ 3 દિવસ આપણને જ્ઞાન આપશે, જ્ઞાનની ગંગા બહાવશે. અને આપણે બહુ જ નસીબદાર છીએ. હું સર્વ પ્રેમપુરી મહારાજના સર્વ ભક્તોનું, પ્રેમપુરી એક આપણી ફેમિલી છે, પ્રેમપુરી એક આપણો પરિવાર છે, એના સર્વ સભ્યોનું સ્વાગત કરું છું. અને હું શ્રી ચિમનભાઈ સોલંકીને 2 શબ્દ કહી અને આજની ભજન સંધ્યા શરૂઆત કરવાનું વિનંતી કરું છું. હરિઓમ. પરમ પૂજ્ય સ્વામી શ્રી પ્રેમપુરીજી મહારાજના ચરણોમાં વંદન. પરમ પૂજ્ય સ્વામી શ્રી અખંડાનંદજી સરસ્વતીજી મહારાજના ચરણોમાં વંદન. સ્વામી શ્રી પ્રેમપુરીજી આશ્રમ ટ્રસ્ટ આયોજિત શ્રી ભાઈદાસ મગનલાલ દલાલ સ્મૃતિ વ્યાખ્યાનમાળા જે સંજોગવશાત ડિજિટલ ઓનલાઈન યોજવામાં આવેલ છે. ભજન સંધ્યા વ્યાખ્યાનમાળા ઓનલાઈન શરૂ કરવાનો શ્રેય આપણા ટ્રસ્ટી શ્રી રાજેશ વૈદને ફાળે જાય છે. આપણા સૌના સદભાગ્યે આ વ્યાખ્યાનમાળામાં આપણને પ્રેમપુરી આશ્રમના અધ્યક્ષ પરમ પૂજ્ય મહામંડલેશ્વર સ્વામી શ્રી વિશ્વેશ્વરાનંદ ગિરિજી મહારાજના આશીર્વાદ સ્વરૂપ 3 દિવસ પ્રવચનનો લાભ મળવાનો છે. તારીખ 15, 16, 17 ઓક્ટોબર આ કાર્યક્રમનું આયોજન થયું છે અને તેનો સમય રહેશે 5:15 થી 7:15. અને આ શરૂઆતમાં 1 કલાક ભક્તિ સંગીતનો કાર્યક્રમ થશે. આપ સર્વેને, સત્સંગીઓને અને શ્રોતાઓને વિનંતી કે આ કાર્યક્રમનો લાભ લેવા જરૂર પ્રયત્ન કરશું. જય શ્રી કૃષ્ણ. ઘણા સમય પછી આપણે મળ્યા છીએ ટેકનોલોજી દ્વારા. આપ સૌ જેમ ચિમનભાઈએ કહ્યું એમ સ્વામી શ્રી પ્રેમપુરીજી આશ્રમ ટ્રસ્ટ આયોજિત શ્રી ભાઈદાસ મગનલાલ દલાલ સ્મૃતિ વ્યાખ્યાનમાળામાં આજે પ્રથમ દિવસે આપણે 1 કલાક ભજન કરીશું. ત્યારબાદ સ્વામીજી એમના અમૃત વચનનો લાભ લઈશું. તો આવો આપણે પ્રાર્થના કરી અને આજની આ 1 કલાક ભજન સંધ્યા આપણે અહીંયાથી પ્રારંભ કરીએ. ઓમ હરિ એમકાર હ્રીમકાર રહસ્યમૂર્તિમ ક્લીમકાર ગુઢાર્થ મહાવિભૂત્ય ઓમકાર મર્મ પ્રતિપાદિનીભ્યામ
नमो नमः श्री गुरु पादुकाभ्याम्। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। नाम लिया सो सब कुछ किया, सकल शास्त्र का भेद बिना नाम नरके गया, पढ़ पढ़ चारों वेद। इसलिए संत कहते हैं जप ले हरि का नाम मेरे मनवा, जप ले हरि का नाम, जप ले हरि का नाम मेरे मनवा, जप ले हरि का नाम। क्यों? उसके नाम से बन जाएंगे, उसके नाम से बन जाएंगे तेरे बिगड़े काम मेरे मनवा, जप ले हरि का नाम, 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 जप ले हरि का नाम मेरे मनवा, जप ले हरि का नाम। नाम तो वो धन है के जो धन निर्धन को धनवान बना दे। नाम तो वो धन है के जो धन निर्धन को धनवान बना दे। नाम ही नर को नारायण की एक पहचान करा दे, एक पहचान करा दे। मतलब एक है राम कहे तू, मतलब एक है राम कहे या फिर कह ले घनश्याम मेरे मनवा, जप ले हरि का नाम, 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 जप ले हरि का नाम ओ मेरे मनवा, जप ले हरि का नाम।
सूरज चांद सितारे पलछिन नदिया पहाड़ समंदर, सूरज चांद सितारे पलछिन नदिया पहाड़ समंदर, नाम के बल से ही चलते हैं ये धरती ये अंबर, ये धरती ये अंबर। नाम ही लेकर दिन उगता है, नाम ही लेकर, नाम ही लेकर दिन उगता है, और नाम से ढलती है शाम। मेरे मनुआ जप ले हरि का नाम, जप ले हरि का नाम, जप ले हरि का नाम, जप ले हरि का नाम। मेरे मनुआ जप ले हरि का नाम। सपने को अपना समझे तू, रेत में महल बनाए, सपने को अपना समझे तू, रेत में महल बनाए। परछाई के पीछे भागे, हाथ कछु नहीं आए, तेरे हाथ कछु नहीं आए। नाम के पेड़ की, नाम के पेड़ की, नाम के पेड़ की छाँव तले तू, नाम के पेड़ की छाँव तले तू, कर ले कुछ विश्राम। मेरे मनवा जप ले हरि का नाम, जप ले हरि का नाम, जप ले हरि का नाम, जप ले हरि का नाम। मेरे मनवा जप ले हरि का नाम, उसके नाम से बन जाएंगे, उसके नाम से बन जाएंगे बिगड़े तेरे सब काम। मेरे मनवा जप ले हरि का नाम। संत तो कहते हैं जप ले, पर मनुष्य क्या कहता है? गुजराती सरस रचना। मन मुश्केली जारे पड़े त्यारे तने याद करूं, मुश्केली जारे पड़े त्यारे तने याद करूं, सुख आवे विसरूं तने, सुख आवे विसरूं तने, दुखों माहूं याद करूं। मुश्किली जारे पड़े त्यारे तने याद करूं। मूड़ी होय जारे बे पैसानी, बनी जाऊं त्यारे बहु अभिमानी। मूड़ी होय जारे बे पैसानी, बनी जाऊं त्यारे बहु अभिमानी। जारे खावाना, जारे खावाना सासा पड़े त्यारे तने याद करूं। मुश्किली जारे पड़े त्यारे तने याद करूं। साथे होय जारे बेसंगाती,
गज गज फूले मारी छाती, छाते होय जारे बेसंगाती, गज गज फूले मारी छाती। पण एकलड़ा जारे एकलड़ा मरवू पड़े त्यारे तने याद करूं, मुश्किली जारे पड़े त्यारे तने याद करूं। मात पिता सुत बांधव दार, अंत समय नथी साथे रहवाना। मात पिता सुत बांधव तारा, अंत समय नहीं साथे रहवाना। दास पुनीत ना शब्दों मळे, दास पुनीत ना शब्दों समझाय त्यारे तने याद करूं, मुश्किली जारे पड़े त्यारे तने याद करूं। सुख आवे विसरू तने, दुखों मां याद करूं। सुख आवे विसरू तने, दुखों मां याद करूं। दुखों मां याद करूं, दुखों मां याद करूं। आइए આજથી 2 દિવસ પછી માતાજીના નવરાત્રિના તહેવારો આવી રહ્યા છે, તો આપણે માતાજીને પણ યાદ કરીએ। ओम ये विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे, जले चानले पर्वते शत्रु मध्ये, अरण्ये शरण्ये सदा मां प्रपाहि। गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। आद्य शक्ति मां आदि अनादि, आद्य शक्ति मां आदि अनादि अरजी अंबा उर्मा धरजे, अरजी अंबा उर्मा धरजे। हे जग जननी मां, हे जगदंबा, हे जग जननी मां, हे जगदंबा। मात भवानी, मात भवानी, मात भवानी, शरणे ले जे। हे जग जननी मां, हे जगदंबा। आद्य शक्ति मां आदि अनादि, आद्य शक्ति मां आदि अनादि। अर्जी अंबा, अर्जी अंबा, अर्जी अंबा,
उर्माधर जे हे जग जननी माँ हे जगदम्बा हे जग जननी माँ हे जगदम्बा। हे माँ आत्मा कोई नो आनंद पामे तो भले संतापी ले जे मुझ आत्म ने। आत्मा जो कोई नो आनंद पामे भले संतापी ले जे मुझ आत्म ने। आनंद एनो हे माँ आनंद एनो अखंड रख जे कंटक दे जे मने कंटक दे जे माँ कंटक दे जे मने पुष्पो दे जे एने। हे जग जननी माँ हे जगदम्बा निजारे मरे सा निजारे रे सा निजारे ग म प ध नि प म प नि प म प ग म रे ग सा रे निजारे म ध हे माँ धूप बनू सुगंध तू ले जे माँ धूप बनू सुगंध तू ले जे मने राख बनी उड़ी जावा दे जे बड़ू भले पड़े हे माँ बड़ू भले पण बाड़ो नहीं कोई ने। जीवन मारू जीवन मारू जीवन मारू जीवन मारू माँ सुगंधित कर दे। हे जग जननी माँ हे जगदम्बा मात भवानी भवानी माता मात भवानी माँ मात भवानी शरणे ले जे। हे जग जननी हे जगदम्बा शक्ति दे जे हे माँ हे माँ शक्ति दे जे भक्ति दे जे माँ दुनिया ना दुख सेवा दे जे शांति दुर्लभ तारा शरणे शांति दुर्लभ। हे माँ शांति दुर्लभ तारा शरणे हे माँ तू हे माँ तू तारा शरणे ले जे।
जग जननी माँ हे जगदम्बा। मात भवानी भवानी मात मात भवानी शरणे लेजे आद्य शक्ति माँ आदि अनादि। आद्य शक्ति माँ आदि अनादि। अर्जी अम्बा अर्जी अम्बा अर्जी अम्बा उर्माधर जे जग जननी माँ हे जगदम्बा। हे जग जननी माँ हे जगदम्बा। हे जग जननी माँ हे जगदम्बा माँ। जय हो। आइए माँ भवानी ने माँ याद करी। आओ हवे આપણે મહાદેવને પણ યાદ કરી લઈએ। સરસ મજાનું એક ભજન કદાચ મને લાગે છે કે પ્રેમપુરીમાંથી ક્યારેય ગવાયું હોય કે ન ગવાયું હોય મને ખબર નથી, પણ આપણે ગાવાની કોશિશ કરીએ। कलावती राग पर आधारित है અને બ્રહ્માનંદ ભજન છે। आओ। शंकर सुख कर शांति कर दुख हर दीन दयाल। ये हर दुख हर जो तमे जटले जो संभाल। वागांबरम भस्मांबरम जटाजूटली बास। आसन जमा के बैठे हैं शिव चंद्र मौली कैलास। भोले तेरी जटा में शिव जी तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। बहती है गंगाधारा काली घटा के अंदर। काली घटा के अंदर जिमी दामिनी उजाला। दामिनी उजियारा भोले तेरी जटा में। भोले तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। बहती है गंगाधारा भोले तेरी जटा में। गले रुंड माल राजे शशि भाल में बिराजे। गले रुंड माल राजे शशि भाल में बिराजे। डमरू निनाद बाजे। ओ डमरू निनाद बाजे और कर में त्रिशूल धारा। कर में त्रिशूल धारा काली घटा के अंदर। काली घटा के अंदर। काली घटा के अंदर
दामिनी उजियारा भोले तेरी जटा में, भोले तेरी जटा में। तीन तेज राशि कटिबंध नाग फांसी, द्रग तीन तेज राशि कटिबंध नाग फांसी, गिरिजा है संगदासी। गिरिजा है संगदासी, सब विश्व के आधारा, सब विश्व के आधारा, भोले तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। धारा रे धारा रे धारा रे, धारा रे धारा रे धारा, धारा रे धारा, बहती है गंगाधारा, भोले तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। शिव नाम जो उच्चारे, ओम नमः शिवाय। शिव नाम जो उच्चारे, सब पाप दोष टारे। शिव नाम जो उच्चारे, सब पाप दोष टारे, ब्रह्मानंद ना विसारे, ब्रह्मानंद ना विसारे, ब्रह्मानंद ना विसारे। कैसे? भव सिंधु पार तारा, भोले भोले तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, बहती है गंगाधारा। काली घटा के अंदर, काली घटा के अंदर, जिमी दामिनी उजियारा, भोले तेरी जटा में। ते शक्ति के रोसार, ते शक्ति के रोसात जटा में, गंगा वह दिन रात डाक डमरू ना डम डमाट। जय शक्ति के रोजात जटा में, गंगा वह दिन रात डाक डमरू ना डम डमाट। शंख नो नाद करे सेवा, शिव ने भजो जीव दिन रात, भोला ने भजो जीव दिन रात। शिव ने भजो जीव दिन रात, भोला ने भजो जीव दिन रात। हे भोला ने तमे भजो जीव दिन रात, शिव ने भजो जीव दिन रात। भोला ने तमे भजो जीव दिन रात। नमः पार्वती पदे हर हर महादेव। भक्ति करो पाताल में, प्रगट होय आकाश। दाबी डूबी ना रहे कस्तूरीनी सुवास। मेरु तोड़ गे पण जेना, मन डाड गे नहीं पानबा। भांगी पड़े ब्रह्मांड, मेरु तोड़ गे पण जेना, मन डाड गे नहीं पानबा।
ભાંગી રે પડે બ્રહ્માંડ રે વિપત પડે તોય વણસે નહીં ધીરે વિપત પડે પણ વણસે નહીં ધીરે સોઈ મારા હરિજનના પ્રમાણ રે સોઈ મારા હરિજનના એ પ્રમાણ ચિત્તની વૃત્તિ જેની સદા નિર્મળ રાખે ને કોઈની કરે નહીં આશરે દાન દેવે પણ રહેવે અજાસીને દાન દિએ રેવે ઉદાસીને રાખે વચનમાં વિશ્વાસ રે મેરું તો ડગે પણ જેના મનડા ડગે નહીં પાનબા ભાંગી રે પડે બ્રહ્માંડ રે હરખ ને શોકની જેને આવે નહીં એડકીને આઠે પહોરે આનંદ રે નિત્ય રહે તો સત્સંગ માને સદાય રે સત્સંગ માને તોડે માયા કેરો ફંદ રે તોડે માયા કેરો ફંદ રે તન મન ધન જણે પ્રભુને સમર્પ્યાને નામ નિજારી નરને નાર રે એકાંતે બેસીને અલખ આરાધે તો જી 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 હે અલખ આરાધે તો પલખ પધારે ને દ્વાર રે મેરું તો ડગે પણ જેના મનડા ડગે નહીં પાનબા ભાંગી રે પડે બ્રહ્માંડ રે સંગત કરો તો તમે એવા નીર કરજો પાનબા
ભજન મારે વે ભરપૂર રે સંગત કરો તો તમે એવા નરની કરજો પાનવા ભજન મારે વે ભરપૂર ગંગા સતી ગંગા સતી એમ જ બોલ્યા ને ગંગા સતી ત્યારે એમ જ બોલ્યા ને નૈણોમાં વરસે હાચાનું રે નૈણોમાં વરસે હાચાનું રે મેરું તો ડગે પણ જેના એ મન ડગે નહીં પાનબા ભાંગી પડે બ્રહ્માંડ વિપત પડે તોય વણસે નહીં જીરે વિપત પડે તોય હે જીરે વણસે નહીં જીરે સોય મારા હરિજનના પ્રમાણ રે સોય મારા હરિજનના પ્રમાણ રે પ્રમાણ રે હે પ્રમાણ. સૌરાષ્ટ્ર કચ્છના આવા જ એક બીજા કવિ એટલે કે દુલાભાયા કાગ આવો એની એક અમર રચના આપણે આજે સાંભળીએ. હેજી તારા આંગણિયા હે પૂછીને જો કોઈ આવે રે આવકારો મીઠો આપજે રે તારા આંગણિયા હે પૂછીને જો કોઈ આવે રે આવકારો મીઠો આપજે રે જી તારા કાને રે સંકટ કોઈ સંભળાવે રે બને તો થોડું કાપજે રે માનવીની પાસે કોઈ માનવી ન આવે રે માનવીની પાસે કોઈ દીદી માનવી ન આવે રે હે તારા દિવસો દેખીને દુખિયા આવે રે બને તો તોડું કાપજે રે જી એ જી તારા કાને રે સંકટ કોઈ સંભળાવે રે એ બને તો થોડું કાપજે રે
કેમ તમે આવ્યા છો એમ નવ પૂછજે રે, કેમ તમે આવ્યા છો એમ નવ પૂછજે રે, હેજી એને ધીરે રે ધીરે તું બોલવાન દેજે રે, આવકારો મીઠો આપજે રે, હેજી તારા આંગણિયા હે પૂછીને જો કોઈ આવે રે, આવકારો મીઠો આપજે રે. કાગયે ને પાણી પાજે સાથે બેસી જમજે, ઓજી રે કાગયે ને પાણી પાજે એની સાથે બેસી જમજે રે, એજી એને જાપારે સુધી વળાવવાન જાજે રે, આવકારો મીઠો આપજે રે, હેજી તારા આંગણિયા હે પૂછીને જો કોઈ આવે રે, આવકારો મીઠો આપજે રે, તારા કાને રે સંકટ કોઈ સંભળાવે રે, મને તો થોડું કાપજે રે, કાપજે રે, કાપજે રે ઓજી. ક્યા બાત. આઈએ આજે જે પ્રથમવાર મળ્યા અને એકદમ એનર્જી સાથે અને જેવા ભજન એવું જ એ ભજનમાં ચાર ચાંદ ઉમેરી દેતા, જેમ કહેવાય કે કળા જેમ પીછા ઉમેરી દેતા, એમ અમારા બંને ભાઈઓ પ્રફુલભાઈ પરમાર અને જીવરાજભાઈ, એમને પણ આપણે સૌ જ્યાં પણ છીએ ત્યાં આપણે તાળીઓથી વધાવીએ. આવો એક ભજન મને ખબર છે આપ સૌને ગમે છે અને આજની પરિસ્થિતિને ખાસ અનુકૂળ ઘણીવાર આપણે ગાયું પણ છે અને બધાને ગમે છે, એટલે હું કોશિશ કરું છું ગાવાની. સ્થાવર જંગમ જડ ચેતનમાં માયાનું જળ, માયાનું બળ જટ વિખરે, સ્થાવર જંગમ જડ ચેતનમાં માયાનું બળ જટ વિખરે, સ્થાવર જંગમ જડ ચેતનમાં માયાનું બળ જટ વિખરે, સ્મરણ કરે શ્રી કૃષ્ણ ચંદ્રનું, સ્મરણ કરે શ્રી કૃષ્ણ ચંદ્રનું, જન્મ મરણ ના પાપ હરે, ચિત્ત તુષિદ ને ચિંતા કરે, કરવું હોય તે કરે, ચિત્ત તુષિદ ને ચિંતા કરે, કૃષ્ણ ને કરવું હોય તે કરે. નવરે માસ રહી ગર્ભમાં પ્રાણી કૃષ્ણચંદ્રનું ધ્યાન ધરે, નવરે માસ રહી ગર્ભમાં પ્રાણી કૃષ્ણચંદ્રનું ધ્યાન ધરે,
मायानु ज्या कर्यु आवरण, मायानु ज्या कर्यु आवरण, 184 ना फेरा फरे। चित्त तुषिद ने चिंता करे, कृष्ण ने करवू होय ते करे। चित्त तुषिद ने चिंता करे, कृष्ण ने करवू होय ते करे। दोरी सहुनी हरिने हाथे, एणे भराव्यू डगलू भरे। दोरी सहुनी हरिने हाथे, एणे भराव्यू डगलू भरे। जेवू जंत्र वगाड़े जंत्री, जेवू जंत्र वगाड़े जंत्री, एवो एनो स्वर निसरे। तुषिद ने चिंता करे, कृष्ण ने करवू होय ते करे। चित्त तुषिद ने चिंता करे, कृष्ण ने करवू होय ते करे। चित्त तुषिद ने चिंता करे, कृष्ण ने करवू होय ते करे। आओ अंतमां थोड़ी वार माटे આપણે સૌ સાથે મળી ગરબા લઈએ ત્યાર પહેલા ગરબા લઈએ ત્યાર પહેલા હજી થોડો સમય છે તો એકાદ ભજન આપણે ગાઈ લઈએ અને ત્યારબાદ આપણે ગરબા ગાઈશું. तुलसी तल बन छांडिए नक्की लीजिए नाम, क्योंकि मनुष्य मजूरी देता है तो क्यों रखेगा राम. आयुष्य नीरतन अंजलि टपकत श्वासोश्वास, हरि भजन बिन जात है अवसर ही सरदास. भज मन राम चरण सुखदाये, भज मन राम चरण सुखदाये. राम चरण सुखदाई, राम चरण सुखदाई. भज मन राम चरण सुखदाई. जी चरणन से निकसी सुरसरी, शंकर जटा समाई. जी चरणन से निकसी सुरसरी, शंकर जटा समाई. जटा शंकरी नाम पर्यो है, जटा शंकरी नाम पर्यो है.
त्रिभुवन तारन आई, राम चरण सुखदाई। भज मन राम चरण सुखदाई। जिन चरणन की चरण पादुका भरत रहो लवलाई। जिन चरणन की चरण पादुका भरत रहे लवलाई। सोई चरण केवट धोइलीन है, सोई चरण केवट धोइलीन है। तब हरि नाम चलाई, राम चरण सुखदाई। भज मन राम चरण सुखदाई। सोई चरण संत जन सेवत, सदा रहत सुखदाई। सदा रहत सुखदाई। सोई चरण गौतम ऋषि नारी, सोई चरण गौतम ऋषि नारी। परसि परम पद पाई, राम चरण सुखदाई। भज मन राम चरण सुखदाई। शिव सनकादिक अरु ब्रह्मादिक, शेष सहस मुख गाई। शिव सनकादिक अरु ब्रह्मादिक, शेष सहस मुख गाई। तुलसीदास मारुत सुत की प्रभु, तुलसीदास मारुत सुत की प्रभु। निज मुख करत, निज मुख करत बड़ाई। राम चरण सुखदाई। भज मन राम चरण सुखदाई। राम चरण सुखदाई। राम चरण सुखदाई। भज मन राम चरण सुखदाई। भज मन राम चरण, राम चरण, राम चरण सुखदाई। आओ थोड़ी वार માટે આપણે માતાજીના ગરબા લઈએ. हे तू काली ने कल्याणी रे मां, ज्या जो त्या जोग माया मां। काली ने कल्याणी रे मां, ज्या जो त्या जोग माया। तने चारे युगो मां वखाणी रे मां, ज्या जो त्या जो
કલ્યાણી રે માં, જ્યાં જો ત્યાં જોગ માયા. તને પહેલા તે યુગમાં જાણી મોરીમાં, જ્યાં જો ત્યાં જોગ માયામાં, શંકર ઘેર પટરાણી રે માં, જ્યાં જો ત્યાં જોગ માયા. હે માં, હે માં, હે માં, તું તો શંકર ઘેર પટરાણી રે માં, જ્યાં જો ત્યાં જોગ માયામાં, કાળી ને કલ્યાણી રે માં, જ્યાં જો ત્યાં જોગ માયા. તને બીજા તે યુગમાં જાણી રે માં, જ્યાં જો ત્યાં જોગ માયા. તું હરિશ્ચંદ્ર ઘેર પટરાણી મોરી માં, જ્યાં જો ત્યાં જોગ માયા. તું સત્યને કાજે વેચાણી રે માં, જ્યાં જો ત્યાં જોગ માયા. તું તારામતી કહેવાણી રે માં, જ્યાં જો ત્યાં જોગ માયામાં, કાળી ને કલ્યાણી રે માં, જ્યાં જો ત્યાં જોગ માયા. હે માડી તારા મંદિરિયામાં ઘંટારવ ગાજે, માડી તારા મંદિરિયામાં ઘંટારવ ગાજે. ઊંચા ઊંચા ડુંગરિયામાં માડી તું બિરાજે, ઊંચા ઊંચા ડુંગરિયામાં માડી તું બિરાજે. માડી તારા મંદિરિયામાં ઘંટારવ ગાજે. માડી તારા રૂપ ઘણા નામ તો હજાર છે, જગમાં તારો મહિમા મોટો તું તો તારણહાર છે. ભીડ ભાંગી ભક્તો કેરી આશીષ દેતી જાજે, ભીડ ભાંગી ભક્તો કેરી આશીષ દેતી જાજે. માડી તારા મંદિરિયામાં ઘંટારવ ગાજે. હે ધીરે रिद्धि दे सिद्धि दे अष्टनव निधि दे, रिद्धि दे सिद्धि दे अष्टनव निधि दे. वंश में वृद्धि दे बाखबानी, हृदय में ज्ञान दे चित्त में ध्यान दे. अभय वरदान दे शंभुरानी माँ, दुख सब दूर कर सुख भरपूर कर, आशा संपूर्ण कर दास जानी. सज्जन सो हित दे कुटुंब सो प्रीत दे, जंग में जीत दे माँ भवानी रे जीरे जंग में जीत दे. माँ भवानी रे जीरे जंग में जीत दे माँ भवानी. ઘણા સમય પછી પ્રથમવાર ઇલેક્ટ્રોનિક માધ્યમથી ઇન્ટરનેટના માધ્યમથી આપણે સૌ સ્વામી શ્રી પ્રેમપુરીજી આશ્રમ ટ્રસ્ટ અને સર્વ ટ્રસ્ટી ગણોના પ્રયાસ, અમારા ખાસ ચીમનભાઈ અને ભાઈ અમારા રાજેશભાઈ વેદની પ્રેરણાથી આજે અમે અહીંયા અમારા ઘરમાં જ જે પણ ઈશ્વરે ઉપસ્થિત કરાવ્યા એવા સાધનો સાથે 1 કલાક સુધી ભગવત નામ ગુણગાન ગાયા. કંઈ ક્ષતિ રહી ગઈ હોય તો ક્ષમા કરજો. આવો હવે આપણે સ્વામીજીનું વચનામૃત, એમના દિવ્ય વચનો આપણે સાંભળીએ. જય શ્રી કૃષ્ણ. प्रेमपुरी के सभी प्रबुद्ध श्रोताओं को मेरा जय श्री कृष्ण. अभी हमने भजनों का आनंद लिया. भजनों से मन को बड़ी शांति मिलती है, अंतःकरण पवित्र होता है. ईश्वर की हम पर बहुत बड़ी कृपा है
ईश्वर से ही प्रार्थना है कि हम सब भाई बहन स्वस्थ रहें, इस महामारी से हमारी रक्षा हो और सबका जीवन आनंदमय रहे और सभी अपने जीवन के परम लक्ष्य, परम तत्व की अनुभूति कर इसी जीवन में जीवन मुक्ति का लाभ ले सकें। यही ईश्वर से करबद्ध प्रार्थना है। इस कोरोना काल में सभी भाई बहनों को घर बैठे सत्संग का लाभ हो, इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर हमारे सभी ट्रस्टी भाइयों ने, हमारे से राजेश भाई ने, से प्रकाश भाई, से गिरी भाई, इन सबके सहयोग और प्रेरणा से तथा हमारे अध्यक्ष प्रातःस्मरणीय महामंडलेश्वर परम पूज्य स्वामी श्री विश्वेश्वरानंद जी की विशेष कृपा एवं प्रेरणा से व्याख्यानमाला आज से प्रारंभ हो रही है। ये व्याख्यानमाला आज, कल और परसों 15 अक्टूबर, 16 अक्टूबर, 17 अक्टूबर 3 दिन की रहेगी और प्रवचन का विषय होगा कर्म, ज्ञान और उपासना। स्वामी जी की बहुत बड़ी कृपा है, विशेष अनुकंपा है हम सब पर। स्वामी जी स्वयं ये व्याख्यानमाला स्वयं व्यासपीठ पर आसीन होकर हमें अपने दुर्लभ प्रवचनों द्वारा लाभान्वित करेंगे। हमें पूरे ध्यान से श्रवण करना है और स्वामी जी से हम जो कुछ सुने उस ज्ञान को अपने जीवन में उतार कर अपने जीवन में, इसी जीवन में जीवन मुक्ति का आनंद लेना है। ये बड़ा दुर्लभ अवसर है। इस व्याख्यानमाला के लिए स्वामी जी ने एक विशेष प्रेरणा हमें दी है कि सभी आयोजन इस कोरोना काल में हमें प्रारंभ करने हैं। प्रातः प्रवचन भी हो रहा है, सायंकालीन कार्यक्रम भी हो रहे हैं। इसी माध्यम से हम सब लोग इसका लाभ लें, यही आपसे प्रार्थना है। अब मैं श्री स्वामी जी से प्रार्थना करता हूँ कि कृपया व्यासपीठ पर पधार कर अपने प्रवचन द्वारा हमें लाभान्वित करें। आइए हम सब पुनः एक बार स्वामी जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हैं। जय श्री कृष्ण। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं। सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः भगवन्तो पुनः पुनः। बहुत सुंदर अवसर है
हम सब लोग स्वामी श्री प्रेमपुरी जी ट्रस्ट के माध्यम से यह सत्संग, यह भजन संध्या आजकल के आधुनिक तंत्र के माध्यम से कह रहे हैं और सुनने वाले सुन रहे हैं। यद्यपि प्रेमपुरी में साक्षात सत्संग हुआ करता है, साक्षात प्रत्यक्ष आकर के बड़े बड़े संतगण यहाँ पर अपना ज्ञान प्रदान करते हैं, परंतु वर्तमान जो ये जिसको संक्रमित काल कहा जाता है, जिसका नाम दिया गया है कोविड-19, जो कोरोना के नाम से प्रसिद्ध है, और इस अज्ञात जंतु ने संपूर्ण विश्व को अपने अधीन कर लिया है, एक प्रकार से उसको जकड़ लिया है। तो फिर भी सत्कर्म बाधित नहीं होना चाहिए, सत्कर्म करते रहना चाहिए। तो इसलिए प्रेमपुरी ट्रस्ट द्वारा खास करके यहाँ के ट्रस्टी श्री राजेश भाई, प्रकाश भाई, गिरीश भाई, जो इन सब कार्यक्रमों का संचालन करते हैं, उनका विशेष आग्रह था कि सत्संग जो जिज्ञासु है उनको सुनने को मिलना चाहिए, और आश्रम में आने के लिए अभी प्रतिबंधित हैं, सरकार की ओर से अभी कोई अनुमति नहीं है। इसीलिए जो तंत्र इस समय वर्तमान का है, तंत्र ज्ञान है, आधुनिक सुविधाएं हैं, इसके माध्यम से यह सत्संग आप लोगों तक पहुंच रहा है। बात यह है कि सत्संग किसी विषय पर किया जाए, सत्संग का क्या प्रारंभ हो, तो परमात्मा को जानने के लिए ही सत्संग होता है। सत्य को जानने के लिए हम लोग जो भी श्रवण करते हैं, श्रवण है, मनन है, निधिध्यासन है, जितने ये क्रियाएं होती हैं तो परमात्मा को जानने के लिए। और परमात्मा है क्या? तो परमात्मा के विषय में एक छोटे से बालक से लेकर के वृद्ध तक सब जानते हैं कि कोई भगवान है। भगवान किसी न किसी रूप में होता है, और जो भी आस्तिक धर्म है, जो आस्तिक लोग हैं, वो परमात्मा को मानते हैं। तो परमात्मा कहाँ है? तो अपना वैदिक सनातन धर्म कहता है कि परमात्मा व्यापक है, सर्वत्र है, उसके सिवाय कोई भी स्थान रिक्त नहीं है। कुछ लोग मानते हैं कि वो परमात्मा अत्यंत दूर है, जिसको सातवां आसमान बोलते हैं। वहां किसी ने किसी को, उनको परमात्मा को, भगवान को उन्होंने देखा नहीं। उनको एक ही समय उनको देखने को मिलेंगे वो भगवान, जब वो कयामत आएगी या जो भी उनका प्रलय होगा, जो भी। परंतु सनातन धर्म में ऐसा नहीं है। सनातन धर्म में तो परमात्मा को जाना जा सकता है। तो कैसे जाना जाएगा? तो उसके लिए कुछ मार्ग है। मार्ग क्या है? कि जैसे परमात्मा ने सृष्टि बनाई, और सृष्टि में परमात्मा ने बना करके उस परमात्मा को पाने के उपाय भी बताए। तो अपने यहाँ पर प्रधान रूप से 3 मार्ग हैं। एक है
कर्म, एक है उपासना और तीसरा है ज्ञान। तो इस जगत में कर्म की ही प्रधानता है। ये कर्म के कारण ही ये जो जगत है उत्पत्ति हुई है। भगवान ने संकल्प किया एको हम बहुश्याम, मैं एक से बहुत हो जाऊं। तो और इस जगत में वो प्रकट हो गए, जगत बना। और जगत का स्वरूप क्या है? उत्पत्ति, स्थिति और लय। ये करने वाला कौन है? परमात्मा है। इस जगत की उत्पत्ति होती है, स्थिति रहती है और उसके बाद में लय होता है। और जो भी संसार में आता है ये अनादिकाल से संसार भी है, अनादिकाल से जीव है और परमात्मा तो वो कालातीत है। परमात्मा का जो स्वरूप है वो अव्यक्त भी है, व्यक्त भी है। संसार रहने पर भी परमात्मा रहता है और संसार नहीं रहने पर भी वो परमात्मा रहता है। इसलिए उस परमात्मा को जानने के लिए अपने को समझना चाहिए कि उपाय क्या है। तो शास्त्रों में उपाय बताए कि कर्म के द्वारा भी उस परमात्मा को जाना जा सकता है, परंतु कर्म के द्वारा तो संसार बनता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते देते कहा किम कर्मेति किम कर्मेति कवयोप्यत्रमुदिता। क्या कर्म है और क्या नहीं है? किम कर्मेति कवयोप्यत्रमुदिता। तो इसमें बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। तो उस कर्म को कैसे समझना चाहिए? तो कर्म को समझने के लिए कर्म के कितने प्रकार है वो समझने पड़ेंगे। तो भगवान ने कहा कि जो कर्म को जानना चाहिए, जो कर्म को जानने के लिए वो 3 प्रकार के कर्म होते हैं। एक होता है कर्म, एक होता है अकर्म और एक होता है विकर्म। तो कर्म, अकर्म और विकर्म, जो कर्म किया जाने वाला होता है, जो हम कर्म करते हैं, तो एक होता है अकर्म जो नहीं करना चाहिए, एक होता है विकर्म। उसको विकर्म का मतलब होता है कि हम जिसको जानते हैं कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए और फिर भी हो जाता है, मिश्रित कर्म। तो ये जो तीनों कर्म होते हैं उसी से संसार में जीव बंधन में आ जाता है। तो इस संसार जो जीव बंधा हुआ है वो क्यों बंधा हुआ है? वो कर्म के कारण बंधा हुआ है। इसलिए कर्म को समझना चाहिए। कर्मण्यपि बोद्धव्यम बोद्धव्यंच विकर्मणा अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति। भगवान ने क्या कहा कि कर्म को जानना चाहिए। कर्म क्या है कि कर्म, विकर्म और अकर्म तीनों को जान लेना चाहिए। तो कर्म जो अपने करते हैं शुभ कर्म करना चाहिए। तो शुभ कर्म क्या है? सत्यम ब्रूयात्, प्रियम ब्रूयात्, न ब्रूयात् सत्यम प्रियम। सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए और असत्य बोलना भी नहीं चाहिए। न ब्रूयात् सत्यम प्रियम, तो अप्रिय हो वो भी सत्य नहीं बोलना चाहिए। तो इसलिए सत्य बोलना चाहिए। ये होता है शुभ कर्म। परमात्मा ने आपको सब कुछ साधन दिए हैं
अब सब साधन देते हुए भी अगर आपने ठीक से कर्म नहीं किया तो दोष परमात्मा का नहीं है। इसलिए कर्म करना चाहिए। और कर्म के अनेक प्रकार हैं। कहते हैं कि 4 प्रकार के कर्म होते हैं। एक होता है नित्य कर्म, एक होता है नैमित्तिक कर्म, एक होता है एक कर्म नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, और एक होता है कर्तव्य कर्म जो किसी कार्य के लिए किया जाता है, जिसको कहा जाता है कि किसी फल के प्राप्ति के लिए कर्म किया जाता है। तो कर्म, अकर्म, विकर्म और निषिद्ध कर्म। एक होता है निषिद्ध कर्म, एक होता है काम्य कर्म, उसका नाम है काम्य कर्म। एक है जो हम लोग कर्म करते हैं उसके लिए कर्म करना चाहिए। फिर होता है कि हम लोगों को नित्य कर्म जो करना चाहिए, जैसे ब्राह्मणों को, जो ब्राह्मण है उसको नित्य कर्म करना चाहिए। जिसने भी यज्ञ पर धारण कर लिया है, जो द्विज बना है, उसको क्या करना चाहिए? नित्य कर्म करना चाहिए। नित्य कर्म क्या है? प्रातः, मध्याह्न और सायं की जो संध्या है वो करना चाहिए। अब वो संध्या करने से वो ब्राह्मण को फल कुछ मिलता है क्या? उसको कोई उसका पुण्य मिलता है क्या? उसको उससे कोई फल पुण्य नहीं मिलता है, और नहीं करने से पाप होता है, क्योंकि उसने व्रत लिया होता है। वैसे ही कोई ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, क्षत्रिय का धर्म क्या है? देश की रक्षा करना, समाज की रक्षा करना, उसको करना चाहिए। वैश्य को क्या करना चाहिए? उसका अपना कर्म करते रहना चाहिए। और जो चतुर्थ वर्ग है, आजकल वो कहना भी थोड़ा सा ठीक नहीं लगता है, परंतु चतुर्थ वर्ण अपना, उसको हम लोगों को कहते हैं कि सेवक, उसको सेवा भाव से सेवा करनी चाहिए, तो उसको पाप नहीं लगता है। तो नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, काम्य कर्म और निषिद्ध कर्म, ये कर्म के प्रधान 4 विभाग किए गए। तो जो भी हम लोग कर्म करने वाले हैं, जो भी हम लोग जिस कार्य में लगे हुए हैं, वो कर्म करना चाहिए। जैसे अब यहीं पर जैसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते देते, जब अर्जुन ने कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किन्नो राज्येन गोविंद किम भोगैर्जीवितेन वा। जब और अर्जुन कौरव सेना और पांडव सेना किस लिए एकत्रित हुई थी? वहां पर कुरुक्षेत्र में किस लिए आए थे? भोजन के लिए, भंडारा था, युद्ध करने के लिए आए थे। और अचानक तो आए नहीं थे कि चलो हम लोग चलते हैं। जैसे कभी कभी बातों बातों में लड़ाई हो जाती है, वैसी लड़ाई तो थी नहीं। पहले भगवान श्री कृष्ण ने इस युद्ध को टालने का भरपूर प्रयास किया कि युद्ध होना ही नहीं चाहिए, और वो स्वयं वहां पर समझौता करने के लिए गए, मध्यस्थ बन के गए, दूत बन करके पांडवों का। और वहां उन्होंने समझाया कि भाई देखो, ये जो हमारे पांडव हैं ये संतुष्ट लोग हैं, ये इनको अधिक आवश्यकता नहीं है, इनको राज्य नहीं चाहिए, केवल जीविका चलाने के लिए इनको 5 गांव दो तो भी चलेगा। अब वहां पर दूसरा पक्ष था जो अधर्म का पक्ष था। वहां पर दुर्योधन बोलता है युद्ध से चाहे तो पूरा राज्य जीत लेवे, परंतु हम उनको 5 गांव क्या, सुई के नोक पर जितनी भूमि आती है वो भी नहीं देंगे। युद्ध की पृष्ठभूमि तो वो है।
अचानक युद्ध हुआ नहीं है। दोनों तरफ से सेना लगी हुई है। एक तरफ से पांडव सेना है, दूसरी तरफ से कौरव सेना है। पांडव सेना में कितने अक्षौणी सेना है? 7 अक्षौणी। और कौरव पक्ष में 11 अक्षौणी सेना। 18 अक्षौणी सेना दोनों तरफ से लगी हुई है और उन्होंने सबने शंख बजाए। उन्होंने क्या किया? शंख बजे, नगाड़े बजे, वहाँ पर बड़ी बड़ी दूसरे वाद्य बजे, बड़ा वहाँ पर जय घोष हुआ, बोलते तुमरो घोष। तो और फिर वहाँ पर युद्ध होने ही वाला था। तब तक अर्जुन के मन में क्या होता है? मोह पैदा होता है कि ये इनको मैं मारूंगा, ये मेरे आचार्य हैं, मेरे पितामह हैं, मेरे ये है, मेरे वो है, सब उनको। जब वहाँ पर ये जब बात का भगवान ने कहा कि भाई इनको मोह होने के लिए यही समय था, और अर्जुन कहता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किन्नो राज्येन गोविंद किम भोगर जीविते नवा। मुझे कोई विजय की आकांक्षा नहीं है, युद्ध की आकांक्षा नहीं है, राज्य की आकांक्षा नहीं है। और इस प्रकार का जब मोह होता है तो अपने कर्तव्य से वो वहाँ पर तो दिख रहा था, है जो कर्तव्य है तो कर्तव्य करना चाहिए। इसी प्रकार जैसे पहले कहा कि अपने जीवन में 4 प्रकार के कर्तव्य होते हैं, कर्म होते हैं। नित्य कर्म करना चाहिए। जो सज्जन पुरुष है, जो धार्मिक हैं, जो परमात्मा को समझते हैं कि इस जीवन का क्या लक्ष्य है, क्या करना चाहिए, तो कुछ नित्य कर्म होते हैं। तो अपने यहाँ पर प्राय करते भी लोग हैं। प्रातःकाल जब उठते हैं, पहले अपने स्वयं के नित्य कर्म, उसको भी नित्य कर्म होता है कि नित्य कर्म के बिना कोई जाएगा बाहर। जब हम प्रातःकाल के हमारे जो नित्य कर्म हैं वो स्नान आदि करने के पश्चात, फिर जब नित्य कर्म के लिए एक हमारे जीवन का अंग है भगवान का स्मरण करना। अपने यहाँ पर गुरु करने की भी प्रथा है, परंपरा है। प्रायः जितने सत्संगी होते हैं, जितने अपने धर्म को मानने वाले होते हैं, अपने यहाँ पर गुरु को स्वीकार किया जाता है। और बिना गुरु के तो ब्राह्मण हो ही नहीं सकता। जब ब्राह्मण बालक को जब यज्ञ पीठ दिया जाता है, उस समय उसको आचार्य होते हैं और आचार्य उनको उपदेश देते हैं। और आचार्य जब उपदेश देते हैं तभी वो जो बालक है द्विज बनता है। द्विज का मतलब है कि वो वेद के अध्ययन के लिए उसको वो माना जाता है कि उसका अधिकारी हो गया। तो इस प्रकार जो नित्य कर्म है उसको करना चाहिए। तो अगर नहीं करेंगे तो वो उससे अपने कर्म से पतित हो जाएगा। तो अपने जीवन में ऐसे कोई कर्म है वो नित्य हम निरंतर करते रहना चाहिए। देखो नित्य कर्म एक होता है नैमित्तिक कर्म। तो नैमित्तिक कर्म का मतलब है कि कभी कभी जैसे अपने यहाँ पर अब आने वाले समय में नवरात्रि आने वाली है, तो नवरात्रि तो हम लोग हर महीने में नहीं मनाते हैं। महीने में कुछ लोग साल में 4 नवरात्रि मनाते हैं। हम लोग प्रायः 2 नवरात्रि मनाते हैं, एक शारदीय नवरात्रि और एक चैत्र नवरात्रि। तो ये और नवरात्रि में क्या करते हैं? भगवती का अनुष्ठान करते हैं, भगवती की आराधना करते हैं, शक्ति की आराधना करते हैं। और उस समय हम लोग विशेष अनुष्ठान करते हैं, चाहे अपने घर में बैठ करके, चाहे किसी तीर्थ स्थल में बैठ करके,
जप करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, यज्ञ करते हैं, ये नित्य निरंतर नहीं करते हैं, ये होता है नैमित्तिक। अब कोई श्रावण महीना आया तो लोग उपवास रखते हैं, तो श्रावण में तो हर महीने में तो नहीं रखेंगे, तो श्रावण महीने में उपवास रखते हैं, भगवान का शिवार्चन करते हैं। तो ऐसे अनेक प्रकार के जो नैमित्तिक कर्म आते हैं। अभी उस समय पर अधिक मास चल रहा है, तो अधिक मास में पुरुषोत्तम भगवान के लोग दर्शन करते हैं, और हमारे कुछ जो कर्मकांडियों ने माताओं को बताया कि घर जाना और मंदिर में जा कर के, जहाँ पर भगवान का मंदिर है, जहाँ पर पुरुषोत्तम भगवान विद्यमान है, वहाँ जाके दिया लगा देना। अब एक नहीं, फिर किसी ने कहा कि 2 दिए जलाने से 2 जन्म का पाप चला जाएगा, या पता नहीं क्या मिलेगा, मतलब तो ये नैमित्तिक कर्म। कहने का भाव ये है, हम लोग नैमित्तिक कर्मों को भी मानने वाले हैं, और नैमित्तिक कर्म को हम ज़्यादा मानते हैं। जैसे सूर्य ग्रहण आया, चंद्र ग्रहण आया, तो सूर्य ग्रहण में, चंद्र ग्रहण में हम लोगों को उस समय भोजन नहीं करना चाहिए, और उस समय कुछ जाप करना चाहिए, तो नैमित्तिक कर्मों को हम लोग मानते हैं। वैसे ही फिर एक है काम्य कर्म। ये काम्य कर्म क्या है? जिससे अपनी कामना पूर्ण हो। काम्य कर्म क्या है? कि हमने अपने मन में कोई कामना है, अब जिसके पास धन नहीं होता है, वो धन की कामना करता है ना, तो उसके लिए कोई किसने बताया कि कोई अनुष्ठान करो, तो अनुष्ठान करते हैं। अब किसी के पास धन है परंतु पुत्र आदि नहीं है, तो उसके लिए भी कोई कर्म किया जाना चाहिए, करते हैं। तो पहले हुआ है कि नहीं, सब हुआ है। दशरथ जी को कोई पुत्र नहीं था, एक पुत्री थी, वो भी अपने किसी मित्र को उन्होंने दे दी थी। उनको होता है ना, वे दत्तक ले लेते हैं, तो उसका नाम शांता था। तो कोई पुत्र नहीं था, तो उसी पुत्री का जो पति श्रृंगी ऋषि, वो जानकार थे, पुत्र कामेष्टि यज्ञ के। तो वशिष्ठ जी महाराज से कहा कि भगवान आप हमारा यज्ञ करो। तो वशिष्ठ जी महाराज ने कहा कि भाई इसका मैं ज्ञाता नहीं हूँ। सबके अलग अलग वो ज्ञाता होते हैं, सबके जानकार होते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप जाओ श्रृंग पर्वत पर, जहाँ पर श्रृंगेरी मठ है, वहाँ पर जाकर के उस ऋषि से जाकर के अनुरोध करो और वो तुम्हारा कार्य सिद्ध करेंगे। दशरथ जी वहाँ पर गए और उनसे अनुरोध किया, और अनुरोध करने के बाद में कौन सा यज्ञ किया? पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया। और पुत्र कामेष्टि यज्ञ के बाद में उनको पुत्र हुए कि नहीं हुए? हुए ना, 4, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। तो ये काम्य कर्म है। अब काम्य कर्म में अनेक प्रकार के कर्म है, छोटे से अनुष्ठान से लेकर के। किसी ने कहा कि तुम कोई, अब आजकल तो ये बीमारियां चलती हैं, तो लोग अपने पंडित लोग बता देते हैं कि तुम ये करो तो तुम्हारा ठीक हो जाएगा। जब महान संकट आता है अपने पर, तो लोग उस पर भी बोलते हैं कि हमारे संकट कैसे दूर होगा। तो कभी कभी शरीर पर बड़ी व्याधि होती है, तो फिर कहते हैं कुछ लोग कि आप भगवान शिव का आराधन करो, और भगवान शिव का जो है वो मंत्र जाप करो। तो कौन सा मंत्र जपाते हैं? महामृत्युंजय। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। तो ये इससे क्या होगा? इससे भगवान त्र्यंबकम, 3 आंख वाले भगवान शिव है,
यद्यपि ये मंत्र इसलिए है कि उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षी अमृता, जैसे बहुत लोगों को ककड़ी कहाँ होती है वही पता नहीं होगा। जो ककड़ी होती है, कलिंगड़ होता है, तो वो जहाँ लगा रहता है, तो उस जैसे वहाँ पर उदाहरण दिया कि भगवान पहले तो उनके नाम की महिमा की, त्र्यंबकम यजामहे, आप 3 आँख वाले, आपको हम नमन करते हैं, आपकी आराधना करते हैं। यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धन, आप कैसे हैं? सुगंधि रूप हैं और पुष्टि को वर्धन करने वाले हैं, आप हमारी शक्ति को वर्धन करने वाले हैं। अब उर्वारुकम वंदना, वहाँ का जो आगे वाला जो मंत्र का शेष भाग है, उसमें विशेषता ये है कि जो जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो जन्म मृत्यु, जब हमारी मृत्यु आवे तो उस समय कि जैसे वो ककड़ी लगी रहती है, जैसा वो खीरा लगा रहता है, जैसा वो कलिंगड़ लगा रहता है, जो पक जाता है तो वहाँ पर अनायासी वहाँ से अलग होता है। इसी प्रकार भगवान हमें मृत्यु के समय कोई कष्ट न हो, विशेष करके उसके लिए मंत्र है। परंतु लोग बताते हैं कि इससे और बहुत को लाभ भी होता है। तो इस प्रकार का जो काम्य कर्म है, ये भी कर्म है। अब एक हुआ नित्य कर्म, भगवान की पूजा करनी चाहिए, नित्य हमें जो हमारा गुरु ने बताया वो उसका जाप करना चाहिए, जो जिसके लिए जो कर्म नियत किया गया है वो कर्म करना चाहिए, और नैमित्तिक कर्म करना चाहिए। तो उसमें यात्रा भी है, उसके भीतर हम लोग कोई विशेष पर्व मनाते हैं तो नैमित्तिक कर्म करना चाहिए, और गृहस्थों के लिए काम्य कर्म भी करना चाहिए। काम्य कर्म से पुण्य का उदय होता है, और काम्य कर्म में छोटे से कार्य से लेकर के वो अश्वमेध यज्ञ तक जितने कर्म किए जाते हैं, और कर्म मोक्ष के लिए नहीं, कामनाओं की पूर्ति के लिए जो कर्म किया जाता है उसको काम्य कर्म कहा जाता है। सामान्य अगर हम कर्म करते हैं, यज्ञ करते हैं तो उसका फल होगा, परंतु एक होता है अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ करने के पश्चात कुछ अश्वमेध हुए तो उसको स्वर्ग आदि मिलता है, और जिसके 100 अश्वमेध हुए उसको इंद्रपद की प्राप्ति होती है। तो इंद्र इसे होने ही नहीं देता है। पुराणों में हम लोग जब जो सुनते हैं तो 99 यज्ञ होने के बाद में सब यज्ञ पर वो आकर के वहाँ पर बाधा डाली देता है, विघ्न पैदा करता है, तो उसको अपना आसन खतरे में लगता है। तो इसलिए, लेकिन होता किस लिए? ऐसे बहुत से राजाओं ने प्रयत्न किया, और यही तो राजा बलि भी तो करने जा रहे थे ना, राजा बलि भी, और वो तो 10-10 अश्वमेध एक साथ कर रहे थे। इसलिए जो भरूच है वहाँ पर भी दशाश्वमेध घाट है ना, वहाँ पर भी। तो इसका कहने का तात्पर्य है कि आप जब काम्य कर्म करते हैं तो छोटे से बात को लेकर के और फिर वो स्वर्ग और इंद्रलोक की प्राप्ति तक, जब परीक्षा का सब समय होता है तो बच्चे लोग जाते हैं भगवान के पास और भगवान को बोलते हैं कि भगवान, अपनी प्रार्थना करते हैं ना, मैं अगर अच्छे नंबर से पास हो जाऊंगा तो मैं आपको 100 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊंगा, बोलते हैं ना। तो ये क्या, उसके मन में क्या कामना है कि मैं अच्छे नंबर से मैं पास हो जाऊं। तो ये काम्य कर्म, और एक है निषिद्ध कर्म। कौन सा कर्म है? निषिद्ध कर्म। नित्य, नैमित्तिक, काम्य और निषिद्ध कर्म। निषिद्ध कर्म का मतलब है कि पाप कर्म, जो मनुष्य के लिए वो निषिद्ध माना गया है, परंतु फिर भी लोग करते हैं।
तो वो कर्म करने वालों को तो वो उनको पता ही नहीं कि नित्य कर्म क्या होता है, नैमित्तिक कर्म क्या होता है, काम्य कर्म क्या होता है, और उनको निश्चित कर्म ही पता नहीं। तो निश्चित कर्म करने वाले ऐसे लोग होते हैं, उनको पता ही नहीं है। लेकिन जो सज्जन होते हैं, जिनको पता है कि ये नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, व्यभिचार नहीं करना चाहिए, मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, दूसरे भी कोई ऐसी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, तो उससे पाप होता है। और जो व्यक्ति कुछ नशीले पदार्थों का सेवन करता है, उसको यही पता नहीं होता है कि वो करता क्या है। इसीलिए सज्जनों को व्यसन से दूर रहना चाहिए। व्यसन किसका होना चाहिए? व्यसन तो होना चाहिए आत्मा का ही, अपना स्वरूप का ही, भगवान का ही, या जो सामान्य कोटि के जो भी भक्त हैं उनको व्यसन होना चाहिए कि भगवान कैसा है, भगवान का क्या स्वरूप है। इसलिए इस कर्मों को ही उनको करना चाहिए और निषिद्ध कर्म नहीं करना चाहिए। अब फिर भी हो जाता है, तो इसीलिए भगवान ने कहा कि किम कर्मेति कवयो पितृ मोहितः। तो ऐसे कर्म जो हैं उसको बड़े बड़े विद्वान भी उससे मोहित होते हैं। और फिर देखा जाए तो ये जो संसार है वो कर्म से बना हुआ है। संसार में हम जो आए हुए हैं, किससे आए हैं? कर्म के द्वारा ही आए हुए हैं। तो इसीलिए ये कर्म ऐसे शुद्ध कर्म करने से हम भगवत प्राप्ति में हम बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। और जो हम मिश्रित कर्म करते हैं उसमें क्या होगा कि कर्म को बंधन में पड़ जाएंगे। कुछ शुभ कर्म होंगे, कुछ अशुभ कर्म होंगे, और शुभाशुभ कर्म से फिर वो हमें जीवन और मृत्यु को प्रदान करेंगे। इस संसार में जितने ये पदार्थ देखे जाते हैं उनका एकमात्र जो हेतु है वो है कर्म। हम जितने लोगों को देखते हैं, केवल लोगों को नहीं, ये तो मनुष्य है, इसने तो बहुत से शुभ कर्म किए होंगे इसलिए मनुष्य बने। परंतु जितने भी अपने यहाँ पर 84 लाख योनि कही गई है, उसमें जलचर, नभचर, थलचर जो भी कुछ कहा जाता है वो सभी के सभी जीव उसके अंदर आ जाते हैं। तो वो कर्म उसमें कितने लोग कि कर्म को समझने वाले हैं? इतने जीवों में से कितने लोग कर्म को समझते हैं? केवल मनुष्य समझता है। और मनुष्य भी सभी समझते हैं क्या? अगर सभी मनुष्य समझेंगे कि निषिद्ध कर्म नहीं करना चाहिए, तो निषिद्ध कर्म करेगा क्या? सबको पता है कि जो व्यवस्था होती है राज्य की व्यवस्था, उसमें न्याय भी होता है, उसकी विधि भी होती है और उसको संचालन करने के लिए भी होता है। तो अगर लोग समझें कि अपराध नहीं करना चाहिए, तो फिर पुलिस की आवश्यकता पड़ेगी क्या? कोई अपराध ही नहीं करेगा, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है स्वच्छंद। तो अगर हम अपराध नहीं करेंगे तो पुलिस नहीं होगी, और पुलिस नहीं होगी तो न्याय व्यवस्था नहीं होगी, और फिर तो सतयुग कहा जाएगा। लेकिन फिर भी करते हैं। ये केवल समझने वाले कुछ लोग होते हैं जो क्या कर्म करना चाहिए, तो भगवान ने कहा कि उसको समझना चाहिए, उसको समझ करके कर्म करने चाहिए। और जो जीव हैं, जो छोटे छोटे जंतु भी हैं, जो पक्षी हैं, जो पशु हैं, वो भी तो जीव हैं। तो एक छोटा सा जीव होता है
जिसको हम लोग मच्छर बोलते हैं, वो कहीं बैठा हो तो उसको थोड़ा सा मारने के लिए उसके ऊपर गड़ो तो कहाँ जाता है? वहीं रहता है, उड़ जाता है, वहाँ से भाग जाता है। उसको भी पता है कि ये आदमी मुझे मारेगा, इसलिए वहाँ से वो भाग के चला जाता है। उनको उतना तो ज्ञान है, परंतु कर्म करने का ज्ञान उसको नहीं है। किसी सज्जन को नहीं काटना चाहिए, ऐसा कभी सोचता है क्या वो? तो वो नहीं सोचता है कि उसको ये है कि मुझे काटने से मैं वहाँ से मेरी क्षुधा पिपासा समाप्त हो जाएगी। तो वो योनि क्यों बनी? क्योंकि वहाँ पर उनके निषिद्ध कर्म ही उसने पहले किए। ऐसे जीव ने नहीं करने वाले कर्म करने के कारण तो क्या हुआ? उसको कौन सी योनि प्राप्त हुई? वो नीच योनि प्राप्त हुई, उसको हम लोग कीड़े मकोड़े इसका वो कहते हैं। तो ये किससे बना? तो उसने कर्म किए और कर्म के आधार पर ही ये हुआ। अब उसमें छोड़ते छोड़ते कब कितना समय लगेगा वो कोई नहीं जानता है। तो ऐसे कर्मों के लिए भी यहाँ पर 3 प्रकार बताए। क्या बताया? कि ऐसा जीव क्यों वहां जाता है? उसका कारण है कि उसने अपने जीवन में, पूर्व जीवन में, इस युग में, पिछले युग में, इस कल्प में, पिछले कल्प में कहीं ना कहीं ऐसे कर्म किए हैं जिस कारण से उसको वो योनि प्राप्त हुई, और उसको बोलते हैं संचित कर्म। क्योंकि संचित कर्म हमारे भी हैं, उस जीव के भी। तो संचित कर्म से उस जीव को प्रारब्ध मिला, और प्रारब्ध कर्म के कारण उस जीव को वो योनि प्राप्त हुई। मनुष्य के भी अनेक कर्म किए हुए हैं, तो इसके भी अनेक संचित कर्म पड़े हुए हैं। तो उन कर्मों से क्या हुआ? मनुष्य को वो प्रारब्ध से मनुष्य शरीर मिला। अब शरीर मिलने पर जो विवेकी है, जो सत्पुरुष है, जो सत्संगी है, ये हमेशा सोचता है कि हमें अब ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जिस कर्म से अब हम बंध जाए। इसीलिए वो अच्छे कर्म करते हैं, सत्कर्म करते हैं। और फिर वही जो प्रारब्ध कर्म ही कैसे बनता है? तो क्रियमान कर्म, किम कर्मे की, जो क्या कर्म है क्या अकर्म है वो समझता है। यस ज्ञात्वा मोक्ष से शुभा, भगवान ने कहा कि तुमको जान करके, तुमको मैं बताऊंगा जिसको जान करके तुम मोक्ष को प्राप्त हो जाओ। इसलिए शुभ कर्म करनी चाहिए, और शुभ कर्म करते करते फिर आप, मैं कौन हूं, मेरा कर्तव्य क्या है, मेरा अधिकार क्या है, मेरी क्षमता क्या है और मेरा स्वरूप क्या है, जब धीरे धीरे जब हम लोग उसको समझते हैं तो फिर उसके बाद में अपने को लगता है कि सचमुच हमको अकर्म भी नहीं करना चाहिए और विकर्म भी नहीं करना चाहिए। तब पीछे वाले जितने कर्म पड़े हुए हैं, ऐसे तो ये 3 दिन का सत्र है, तो आज कर्म की बात होगी, फिर उपासना की बात होगी और फिर ज्ञान की बात होगी। तो जो संचित कर्म में से जो हमारा प्रारब्ध आया, और उस प्रारब्ध के कारण ये शरीर बना, शरीर इसकी क्या आयु होगी, कैसा स्वास्थ्य होगा, क्या कितना आपको यश मिलेगा, कितना ऐश्वर्य मिलेगा, ये शरीर के साथ ही जुड़ा हुआ, शरीर से भिन्न नहीं है। जिस दिन आपका जन्म हुआ उसी दिन जन्म मरण विधि हाथ, ऐसा कहा ना,
कि भरत जी को कहा कि ये तो अपने हाथ में है ही नहीं। तो विधि का मतलब विधि का जो विधान है उसके कारण हम, तो वहीं से हमारा प्रारब्ध हुआ। परंतु ये संचित में से प्रारब्ध आया, परंतु हमारे कर्म को बदलने की हमारे पास में उसका अधिकार है। कैसे है? उसको ही शास्त्र में कहा गया, वही क्रियमान कर्म है। आप जो कर्म इस समय कर रहे हैं वो कौन सा कर्म है? क्रियमान कर्म, हम करने वाले। तो उसमें हमको कौन सा कर्म करना है? नित्य कर्म करना है, नैमित्तिक कर्म करना है, काम्य कर्म करना है या निषिद्ध कर्म करना है। तो नित्य कर्म करने से हमें क्या होगा कि अपने को उससे अंतःकरण की धीरे धीरे शुद्धि होगी, अंतःकरण निर्मल होगा। तो इसलिए भगवान ने कहा कि ये आप कर्म करते करते जब आपका अंतःकरण निर्मल हो जाएगा तो वही जो आप कर्म काम्य कर्म करते हैं वही निष्काम कर्म बन जाएगा। तो ये एक मार्ग है किसको प्राप्त करने का, भगवान को प्राप्त करने का एक मार्ग है। और इसकी गति तो बहुत विचित्र है। जब हम आवेश में आते हैं, जब हम अपने ज्ञान पर पर्दा पड़ता है, कभी कभी ये भी देखने में आता है कि हमें ज्ञान होने पर भी हमें पता है कि ये कार्य नहीं करना चाहिए, तब भी वो कार्य कभी कभी हो जाता है। नहीं हो इसलिए प्रयत्न करना चाहिए। तो इसलिए ये जो जीवन है, मनुष्य जीवन, पशु जीवन, कीट जीवन, ये तो केवल भोग योनि है। अपने संचित को भी संवारने का, अपने प्रारब्ध को संवारने का वो जो कार्य कर सकता है वो क्रियमान कर्म है। तो क्रियमान कर्म करते करते और जब वो जो मनुष्य है जब निर्मल होता जाएगा, इसलिए भगवान ने शायद कहा होगा अनेक जन्म संसिद्धि। हमने जो पहले का कर्म किया है उसका फल हमें मिल जाता है, परंतु हम कर्म करते 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 अपने जीवन को उच्च स्तर पर ला सकते हैं। जैसे एक छोटा सा विद्यार्थी जो प्राइमरी स्कूल में जाता है और उसको पता होता है कि मुझे अंतिम तक शिक्षा ग्रहण करनी है, तो उसकी योजनाबद्ध तरीके से चलता है और वो अंत में जो उसने अपने दिन में सोचा हुआ है उसको प्राप्त करना है। बहुत से लोग बीच में छोड़ते हैं, क्या करना है, पढ़ना लिखना क्या जरूरत है, जीवन जीना है, जीने के लिए क्या आवश्यकता है, कैसे भी जी लेंगे, ऐसा कहने वाला फिर वही बीच में रुक जाता है। ऐसे ही जब मनुष्य जब समझ ले कि अपने को उस परम पुरुषार्थ को प्राप्त करना है तो उसके लिए वो प्रयत्न करता है। तो इसको प्रयत्न करते करते फिर वो भगवत प्राप्ति में वो भगवत प्राप्ति को कर सकता है। तो इसीलिए जो कर्म करना चाहिए उस कर्म का स्वरूप क्या हो, कर्म का स्वरूप हो कर्म को समझते हुए, कर्म को पहले समझना चाहिए, कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, भगवान ने कहा। और कर्म समझते हुए और फिर उसमें जब निष्काम कर्म आ जाता है, हमारे यहाँ पर अपना सिद्धांत है, अपने यहाँ पर लोग बोलते हैं कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। हमारे जीवन में हम लोग बोलते रहते हैं और भगवान का जब स्मरण करते हैं तुम्हें माता पिता तुम्हें, हम भगवान को जानते ही हैं, परंतु हम पूर्ण रूप से नहीं जानते हैं। उसका कारण है कि हमारे जो अंतःकरण में कुछ संस्कार पड़े रहते हैं, उन संस्कारों को कर्म के द्वारा ही उसको हमको हटाना पड़ेगा। कर्म का मतलब है कि जो सत्कर्म के द्वारा उसको निवृत्त करने के पश्चात हम लोग उस परमात्मा को जान सकेंगे। इसलिए कर्म करना चाहिए। कैसा करना चाहिए? बोलते हैं योग कर्म सुकौशलम। जो शुभ कर्म समझ के कर्म करने का नाम ही योग है।
जो कुशलता पूर्वक किया जाए। कुशलता किसमें है कि हम क्या है समझना चाहिए, और इसलिए अपना जो धर्म है सनातन धर्म, ये भगवान की तरफ जाने के लिए अनेक रास्ते खोलता है। उसमें से एक मार्ग कौन सा है? एक कर्म का मार्ग है। हाँ, तो वो कर्म के मार्ग के लिए हम लोग ये कर्म के माध्यम से भी उस परमात्मा के मार्ग पर चल सकते हैं, और चलते हुए अनेक साधकों ने भगवान को प्राप्त किया है। तो आज के सत्र में इतना ही, और जो यहाँ पर जो भजन संध्या चल रही है उसमें अब और भी आप लोग भजन के माध्यम से प्रेम वाले आनंद लेंगे। तो इतना ही कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति।